Good morning, students. Yesterday in second class, we had started the biomolecule chapter और उसमें हमने पढ़ा था classification of carbohydrates. We had started carbohydrates. Carbohydrates are hydrates of carbon and they are of three types. Monosaccharides, then oligosaccharides and polysaccharides. Saccharide क्यों बोलते हैं? Because they are sugar. So they are called saccharides and स्वीट होते हैं टेस्ट में. पॉलीसेकेराइड स्वीट नहीं होते, पानी में डिजोल्व नहीं होते. बाकी सारे जितने होते हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर. एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट गिवन ऑन हाइड्रोलिसिस. सेकेंड क्लासिफिकेशन हमने किया था whether sugar is reducing or non-reducing. According to that, they are classified. Reducing sugar means they give test with Tollens reagent and Fehling solution. If they give, then they are reducing sugar. If they won't, then they are not reducing sugar. फिर हम कर रहे थे nomenclature, how to give name to the carbohydrate compounds that depend on the number of carbon atoms as well as the functional group present in them. Suppose aldehyde functional group present है और carbohydrates में total 6 carbon present है, तो हम क्या बोलेंगे? aldohexose. ओज पीछे suffix लगेगा. देखिए एक example. Suppose we have this type of carbohydrate, CH2OH, CHOH, then CHOH, after that C double bond O, CH2OH. How to write name to this carbohydrate? First of all, we have to see the functional group present in it. Which functional group is there? It is keto. So write keto. Then you have to count total number of carbon atoms. It's 1, 2, 3, 4 and 5. So it is pent. And O's पीछे लगाना है. So it is ketopentose. Functional group એટલે keto, 5 carbons so pent. O's is the suffix for all the carbohydrates we have to use. So its name is ketopentose. अगर aldehyde group present होगा तो हम क्या बोलेंगे? aldopentose. 6 carbon तो aldohexose. 7 carbon तो aldoheptose. Accordingly, we have to give the name to the carbohydrate. Suppose only 2 carbon atoms are there तो बोलेंगे aldobiose. जैसे CH2OH और यहाँ पे है CHO. क्या नाम लिखेंगे? aldehyde group है ना, इसलिए aldo और 2 कार्बन है इसलिए biose. बाई मतलब 2, डाई नहीं बोलते, बाई बोलते हैं. aldobiose. So this way we can give nomenclature to the carbohydrate compounds. Now we are starting with the first monosaccharide and that is glucose. कहाँ मिलता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज हमको पढ़ना है. ग्लूकोज होता है स्वीट टेस्ट में और जनरली ये स्वीट फ्रूट्स और हनी में मिलता है. जैसे चीकू है, ग्रेप्स है ना, उनमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है. जो डायबिटिक पेशेंट्स होए ने ना पाड़े डॉक्टर के मीठा फ्रूट नहीं खावाना, केड़ा चीकू ये બધું नहीं खावाना, बिकॉज दे ऑल कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज. हनी में ग्लूकोज होता है. शुगर केन जूस पीते हो उसमें ग्लूकोज होता है. किसी को चक्कर आ रहा है और तुरंत शक्कर की जरूरत है, उसको शुगर की जरूरत है, तो शुक्रोज पिला सकते हैं या गन्ने का जूस पिला सकते हैं. हनी पानी में डिजोल्व करके पिला दो, प्रोवाइडेड उसको डायबिटीज नहीं होना चाहिए. क्योंकि डायबिटिक हुआ और चक्कर आ रहा है और ऐसा कुछ है या शुगर लो हो गया तो आप तुरंत शक्कर घोल के भी पिला सकते हो. तो स्वीट फ्रूट्स, हनी, दे ऑल कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज. मैक्सिमम ग्लूकोज मिलता है इनमें. स्वीट फ्रूट्स हैं ये. क्लियर? अब सबसे पहले पढ़ रहे हैं इसका प्रिपरेशंस. बहुत बार पूछा गया है preparation of glucose in laboratory and in industry. Naturally तो स्वीट फ्रूट में मिलता है, आप लैब में भी बना सकते हो ग्लूकोज. Preparation of glucose. First it is prepared from cane sugar, that is sucrose. कैसे बनाएंगे? First is from sucrose. Sucrose is C12
H22O11. When it is hydrolyzed in presence of acid or enzyme, either hydrolysis taking place in presence of acid or it is taking place in presence of enzyme. HCl के साथ H2SO4 भी ले सकते हो, कोई भी एसिड, अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना है. Okay, it will give glucose C6H12O6 plus fructose C6H12O6. फॉर्मूला सेम है दोनों का. ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है. फर्क क्या होता है इन दोनों में? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं. ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है. सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज वी गेट फ्रॉम सुक्रोज. और दोनों को सेपरेट करते हैं अल्कोहल में डाल के. एक अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएगा, दूसरा अल्कोहल में सोल्यूबल नहीं होगा, इसलिए हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं. सो बेस्ट मेथड, laboratory method for getting glucose from sucrose, that is hydrolysis. Hydrolysis always carried out in presence of acid or base. So water is added in presence of HCl or sulfuric acid, we get glucose and fructose. Second is important method, and that is from starch. Second is from starch. How do we get glucose from starch? स्टार्च ग्लूकोज सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है. स्टार्च की फॉर्मूला C6H10O5 whole N. This is polymer. Starch is polymer. When it is hydrolyzed with H plus 393 Kelvin, 2 to 3 atmospheric pressure. Hydrolysis in presence of sulfuric acid. How much sulfuric acid we have to use? Dilute sulfuric acid. Dilute H2SO4. 2 to 3 atmospheric pressure and temperature कितना लेवानो 393 Kelvin. क्या मिल जाएगा आपको? N moles of glucose C6H12O6. Many times this reaction was asked in board exam. पहला वाला इतना नहीं आता है, सेकंड ज्यादा आता है. स्टार्च से आप ग्लूकोज कैसे बनाओगे? तो ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइजिंग ऑफ स्टार्च. स्टार्च एक पॉलीमर है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, तो पॉलीमर डिकम्पोज होके मोनोमर दे रहा है. ये पॉलीमर है और ये मोनोमर है. सो व्हेन हाइड्रोलाइज्ड, दिस स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड. 2 to 3 atmospheric pressure लेना है और 393 Kelvin temperature. What we get? Glucose. So these are the two methods for preparation of glucose. 2 मार्क में पूछ सकते हैं आपसे. Write only equations for preparation of glucose. One from sucrose and second from starch. Now, very important topic, structure of glucose. अब क्या हुआ कि ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता है, C6H12O6 है. This is the molecular formula of glucose. ठीक है. अब पता लगाना है कि 6 कार्बन कैसे अटैच्ड है. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ग्लूकोज कंपाउंड? इसको अल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं इसको, है ना. अल्डोहेक्सोज बोलते हैं इसको. मैंने बताया था ना अभी. क्यों बोलते हैं अल्डोहेक्सोज? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन प्रेजेंट है, अल्डोहेक्सोज. फिर इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, है ना. डेक्सट्रोज भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें एनर्जी सब्सटेंस प्रेजेंट है. ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी मिलता है. अब अपन इसमें ये स्टार्च और सेल्यूलोज और सब में प्रेजेंट होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में. अब इसका स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढा उन्होंने, तो C6H12O6 होता है. अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 180 होता है, 180 ग्राम पर मोल. अब साइंटिस्ट के सामने क्वेश्चन ये आया कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा. There are 6 carbon, there are 12 hydrogen, and there are 6 oxygen atoms in glucose. How they are arranged? कौन-कौन से ग्रुप इसमें प्रेजेंट है? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है या 6 का ऑक्सीजन है ना, तो एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या अल्डिहाइड कीटोन है, या अगर कीटोन है तो कितने कीटोनिक ग्रुप है. कार्बन 6 कैसे अरेंज्ड है? 6 कार्बन है तो क्या वो सब स्ट्रेट अरेंज्ड है? 1 2 3 4 5 6 का પછી આવી રીતના અરેન્જ છે બ્રાન્ચ થઈને, કેવી રીતના ગ્લુકોઝ નું અરેન્જમેન્ટ છે? મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા થી સ્ટ્રક્ચરલ ફોર્મ્યુલા તો બનાવવાનો.
તો કેવી રીતના એનું સ્ટ્રક્ચરલ ફોર્મ્યુલા એ લોકોએ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું, એની કેમિસ્ટ્રી કાએ ટેસ્ટ કર્યા લેબોરેટરીમાં, so that they got the structure of glucose. तो अपन पढ़ रहे हैं how they got a structure of glucose, क्या क्या रिएक्शंस परफॉर्म की और उससे क्या क्या उनको इंफॉर्मेशन मिली फॉर गेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. चलिए फर्स्ट, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता लगाना है. सबसे पहली रिएक्शन जो परफॉर्म की इन ऑर्डर टू गेट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, एंड दैट इज दे ट्रीटेड ग्लूकोज विथ HI and they got N-hexane. क्या रिएक्शन परफॉर्म किया? फर्स्ट ग्लूकोज जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, इसको HI के साथ हीट किया और क्या मिला? N-hexane. N-hexane मतलब ऐसा CH3, CH2, CH2, 4, 5 और ये 6 N-hexane मिला. अब HI के साथ हीट करने पे N-hexane मिल रहा है, इससे क्या बात प्रूव होता है? All the 6 कार्बन in glucose are linearly attached. चेन में है वो. This reaction suggests about structure. क्या सजेशन मिलता है? क्या उनको सजेशन मिला इससे? 6 कार्बन in glucose linearly attached. In glucose joined in a straight chain. Joined in no branching. जितने भी कार्बन हैं 6 के 6 कार्बन linearly attached. मतलब ये जो ग्लूकोज है इसके स्ट्रक्चर में 6 कार्बन ऐसे अटैच होंगे, कोई ब्रांचिंग नहीं. तो फर्स्ट रिएक्शन परफॉर्म, दैट इज glucose when heated with HI, they got N-hexane. This reaction suggests that this reaction proved that 6 carbon in glucose joined in a straight chain. તો જ સ્ટ્રેટ ચેન મળે ને HI સાથે હીટ કરવાથી. જેટલા બી ફંક્શનલ ગ્રુપ હોય બધા એમાં રિડ્યુસ થઈ જાય. HI is so powerful reducing agent. All the functional group get reduced. ભલે COOH હોય કે ketone હોય, alcoholic group હોય, all get reduced. Clear? तो पहली बात तो प्रूव हुई कि 6 कार्बन स्ट्रेट है, ब्रांच्ड नहीं है. Second, they performed the experiment that glucose when treated with hydroxylamine they give oxim. When they treated with HCN they give cyanohydrin. And these reactions prove the presence of carbonyl group. देखिए कैसे. Second, ग्लूकोज, जब इस ग्लूकोज को जिसकी फॉर्मूला है C6H12O6 हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट कराया, NH2OH. NH2OH का नाम क्या है? हाइड्रोक्सिलामाइन. तो जब इसको हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या मिला? ऑक्सिम. जब इसको HCN के साथ रिएक्ट करवाया तो मिला साइनोहाइड्रिन. नाम याद आ रहा है आपको? कहां देखे थे ये नाम? ऑक्सिम, साइनोहाइड्रिन. एल्डिहाइड और कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं. मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड O, दे गिव दिस रिएक्शन. जैसे C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, अगर हम इसको ऑक्सिम मतलब NH2OH से रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? C डबल बॉन्ड NOH. इसका नाम ऑक्सिम है. एंड इफ इट इज ट्रीटेड विद HCN, व्हाट इज साइनोहाइड्रिन? एडिशन हो जाएगा. क्या बनेगा? CN एंड OH. तो वो सारे कंपाउंड्स जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, C double bond O group means carbonyl group. So all the compounds having carbonyl group when react with hydroxylamine, they give oxim. And when they react with hydrocyanic acid HCl, they give cyanohydrin. इन रिएक्शन से क्या बात प्रूव होती है? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है.
second reaction, second experiment suggests us that in the structure of glucose there is presence of carbonyl group. So these reactions prove presence of carbonyl group. Presence of carbonyl group. अल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. तो सेकंड रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन NHCN proves the carbonyl group present in glucose. अब कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड भी हो सकता है, कार्बोनिल ग्रुप कीटोन भी हो सकता है. अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएशन करने के लिए बहुत सारे टेस्ट है हमारे पास. टॉलरेंस टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, बेनेडिक्ट है, शिफ बेस है. Lots of reagents are there which can differentiate between aldehyde and ketone. अब हमको पता लगाना है कि कार्बोनिल ग्रुप है तो उसमें वो ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है. तो उसके लिए उन्होंने नेक्स्ट रिएक्शन परफॉर्म किया फॉर फाइंडिंग आउट वेदर ग्लूकोज कंटेन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और कीटोन फंक्शनल ग्रुप. उसके लिए कौन सी रिएक्शन परफॉर्म किया? थर्ड. Third reaction performed, that is glucose oxidized to 6-carbon carboxylic acid, that is called gluconic acid, when reacting with mild oxidizing agent like bromine water. This indicates that carbonyl group is present as an aldehyde group. Weak oxidizing agent से कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है. तो उन्होंने क्या किया? ग्लूकोज को ट्रीट किया किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ. ग्लूकोज व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर दे गॉट कार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड. मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज ग्लूकोनिक एसिड. कौन सा एसिड मिला? ग्लूकोनिक एसिड. Monocarboxylic acid having 6 carbon atoms. Monocarboxylic acid जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड. मतलब ब्रोमीन वाटर कैसा है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो मतलब ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ COOH बना रहा है. इट मींस कीटोन तो नहीं है, अल्डिहाइड ग्रुप होगा. टेक्स्ट बुक में ये टेस्ट दिया हुआ है. तो टॉलरेंस टेस्ट भी ले सकते हैं. ग्लूकोज को अपन टॉलरेंस रिएजेंट के साथ हीट करें तो सिल्वर मिरर मिलेगा और वो ये बात प्रूव करेगा कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है, नॉट कीटोन. बट इन बुक इट इज गिवन ब्रोमीन वाटर, सो यू हैव टू राइट ब्रोमीन वाटर टेस्ट. सो ग्लूकोज व्हेन हीटेड विथ ब्रोमीन वाटर व्हिच इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट गिव्स ग्लूकोनिक एसिड. और वो ये प्रूव करता है कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है बिकॉज only aldehyde groups get oxidized by weak oxidizing agent like bromine water. So this reaction proves that in glucose aldehyde group is present. Carbonyl में कौन सा है? aldehyde group present. अब 6 कार्बन है, 6 स्ट्रेट लाइन में है, 3, 4, 5 और 6, तो एक CHO होगा क्योंकि CHO हमेशा टर्मिनल पे होता है. CHO क्या होता है? टर्मिनल पे होता है. तो या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा, बीच में तो कोई नहीं होता. इस तरीके का स्केलेटल स्ट्रक्चर उन्होंने सजेस्ट किया. 6 कार्बन लीनियरली अटैच्ड. फिर देखा कार्बोनिल ग्रुप है उसमें. कार्बोनिल ग्रुप में भी कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड. कैसे पता लगा अल्डिहाइड है? ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज किया, ग्लूकोनिक एसिड मिला, एंड दिस प्रूव्स दैट देयर इज अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट. अब नेक्स्ट, एक अल्डिहाइड ग्रुप है या 3-4 अल्डिहाइड ग्रुप है, वो कैसे पता लगेगा? कोई और फंक्शनल ग्रुप्स हैं अल्डिहाइड के अलावा. अल्कोहल में भी ऑक्सीजन होता है तो क्या फंक्शनल ग्रुप्स चाहिए कि हम खबर पड़े. नेक्स्ट, एसाइलेशन रिएक्शन किया. एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसिटेट व्हिच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप. एसाइलेशन रिएक्शन. नेक्स्ट, fourth experiment, glucose treated with acetic anhydride
CH3CO होल्ड ट्वाइस O, क्या नाम है? एसिटिक एनहाइड्राइड। असाइलेशन के लिए काम आता है। रिएक्शन का नाम क्या होता है? एसाइलेशन। So when acylation is carried out of glucose with acetic anhydride, you can also use acetyl chloride. क्या मिला? पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव। क्या मिला? पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव। क्या मतलब इसका? पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव मींस अल्कोहल अगर है इसमें तो एसाइलेशन के बाद किसमें चेंज हो जाएगा? OCOCH3। ये अल्कोहल और ये कौन सा ग्रुप है? असाइल। ये असाइल ग्रुप ऐड हुआ। तो अगर अल्कोहलिक ग्रुप है तो वो OCOCH3 में चेंज होता है। तो ऐसे कितने असाइल डेरिवेटिव मिल रहे हैं? 5 पेंटा असाइल डेरिवेटिव। इससे प्रूव होता है कि ग्लूकोज में टोटल 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव बन रहा है। दिस सजेस्ट दैट 5 OH ग्रुप प्रेजेंट इन glucose. 5 OH group present in glucose. एक अल्डिहाइड ग्रुप है और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। कैसे पता लगा कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं? When glucose is treated with acetic anhydride, we got penta-acetyl derivative. This proves the presence of 5 hydroxyl group in glucose. 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। ओके, अब पता लगाते हैं अल्कोहलिक ग्रुप क्या सारे प्राइमरी हैं या सेकेंडरी हैं या कितने टर्शरी हैं? कैसे पता लगेगा? नेक्स्ट, ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज गिव्स ग्लूकोनिक एसिड, both yield dicarboxylic acid, saccharic acid. This indicate the presence of primary alcoholic group in the glucose. नाइट्रिक एसिड के साथ जब इसको ट्रीट करते हैं ग्लूकोज को तो सैकरिक एसिड मिलता है, और ग्लूकोनिक एसिड को भी अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो सैकरिक एसिड मिलता है। सैकरिक एसिड क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। किसके साथ ट्रीट किया? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सी, when glucose is treated with concentrated nitric acid, क्या मिला? सैकरिक एसिड, जिसमें 2 COOH ग्रुप थे, 2, 3, 4, 5 और ये 6। क्या बोला इसको? सैकरिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और जब अपन ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं, एक COOH था उसमें, ग्लूकोनिक एसिड, तब उससे भी आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सैकरिक एसिड मिलता है। When concentrated nitric acid, ग्लूकोज में डालो या ग्लूकोनिक एसिड में डालो, दोनों से सैकरिक एसिड मिल रहा है, मतलब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। इसका मतलब इसमें एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये तो COOH CHO की वजह से आया है, यहाँ पे CHO है इसलिए COOH में चेंज हुआ है। दूसरा COOH कहां से आया? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। वी नो दैट प्राइमरी अल्कोहल व्हेन ऑक्सीडाइज्ड, अगर इसको आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उससे ऑक्सीडाइज करते हो तो क्या मिलता है? COOH। सेकेंडरी अल्कोहल नहीं होता कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, वो कीटोन देगा, लेकिन यहाँ तो सैकरिक एसिड मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसमें एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एंड 1 CHO ग्रुप। तो ये रिएक्शन प्रूव करती है इट कंटेन्स 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। अब स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्राइमरी है तो टर्मिनल पे आएगा, 3, 4, 5 और 6 पे CHO, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब तक के जो रिएक्शंस की उससे इस टाइप के स्ट्रक्चर प्रूव होते हैं। 6 कार्बन लीनियरली अटैच्ड, देन कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप में अल्डिहाइड ग्रुप प्रूव किया,
फिर 5 OH ग्रुप्स हैं, लेकिन उसमें से एक ही प्राइमरी है, तो ये रहा प्राइमरी। अब बाकी के हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ होंगे? एक कार्बन पे 2 OH तो नहीं हो सकते, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप तो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए अगर बाकी के अपन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अरेंज करें, 5 है टोटल, एक आ गया, तो सेकंड यहाँ होगा, थर्ड यहाँ होगा, फोर्थ यहाँ होगा और फिफ्थ यहाँ होगा। क्यों एक एक कार्बन पे एक एक OH ग्रुप? Because if to the same carbon we place 2 OH group, then that is unstable, water molecule remove हो जाएगा, इसलिए अलग अलग कार्बन पे एक एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। This is the structure suggested for glucose. हर पे बाकी हाइड्रोजन प्लेस कर दो, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, H यहाँ पे H and here also H. So this is the suggested या proved structure of glucose. 6 carbon linearly attached, 1 aldehyde group, 1 primary alcoholic group and 4 secondary alcoholic group. This is the structure of glucose. बनाते हैं इसको, कैसे बनाते हैं देखो। आओ स्ट्रक्चर है ग्लूकोज, CHO देन CHOH, ऐसे टोटल 4 है, फिर CH2OH. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अपन जितनी रिएक्शंस लिखी सब इसके साथ लिख सकते हैं, ग्लूकोज के साथ लिखिए रिएक्शन। पहली कौन सी थी? स्ट्रक्चर के साथ लिखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन थी HI के साथ, इसको जब आप HI के साथ ट्रीट करोगे तो क्या मिलेगा? N-हेक्सेन, मतलब CH3 CH2 3 4 5 and this 6। सेकंड कौन सी रिएक्शन लिखी थी? हाइड्रोक्सिलामाइन और HCN के साथ, ये ग्लूकोज 4 CH2OH, इसको ट्रीट करते हैं NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, और इसको ट्रीट करते हैं HCN के साथ। क्या बनेगा? ऑक्सिम, ये O और H2 निकल जाएगा, CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH whole 4 and CH2OH. This is called oxim, glucose oxim, glucoxim बोलते हैं इसको, oxim मिला। And what about this? HCN के साथ CH, CN and OH. Here CHOH whole 4 and CH2OH. This is called cyanohydrin. This is cyanohydrin. कार्बोनिल ग्रुप के लिए जो रिएक्शन पढ़ा था कि ग्लूकोज गिव्स ग्लूकोज ऑक्सिम, ग्लूकोज गिव्स cyanohydrin with HCN. This reaction proves presence of कार्बोनिल ग्रुप। अब थर्ड रिएक्शन क्या था? ग्लूकोनिक एसिड कैसे बनेगा जब इसका ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर से करेंगे। थर्ड रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, ऑक्सीडेशन विथ ब्रोमीन वाटर, क्या मिलेगा? ग्लूकोनिक एसिड। कैसे मिलेगा? ये जो CHO है ना वो COOH में चेंज हो जाएगा, होल 4 CH2OH, सुनाम छेनो ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। और 5 पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव से कैसे रिएक्शन करता है? पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट किया, CH3CO whole twice O, कैसे बनेगा पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव? CHOMM અહીંયા બનશે CH OCOCH3 whole 4 and CH2O COCH3. This is pentacetyl derivative. Pentacetyl derivative. 5 OH ग्रुप प्रूव करता है रिएक्शन। ये जितने भी OH ग्रुप दिख रहे हैं उसमें H हटेगा, उसकी जगह असाइल ग्रुप आया, H हटा असाइल ग्रुप, यहाँ पे H था वो हटा, उसकी जगह पे असाइल ग्रुप। पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव बिकॉज इट हैज 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, लास्ट रिएक्शन था when glucose is oxidized with concentrated nitric acid. Glucose oxidized with concentrated nitric acid. This is glucose, CHOH whole 4. Here
CH2OH. This is glucose. And when it is oxidized with concentrated nitric acid, what we got? Saccharic acid. क्या फॉर्मूला होगा सैकरिक एसिड का? COOH, CHOH whole 4, COOH. प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप. इसका ऑक्सीडेशन करो तब भी सैकरिक एसिड बनता है. This is called saccharic acid. These are the reactions used to get structure of glucose. Okay, so what is the structure of glucose? It contains 6 carbon linearly attached, then CHO group present, 5 OH group, out of that 1 is primary and 4 are secondary alcoholic group. These reactions suggest the structure of glucose. Now in next class, we will talk about stereochemistry of glucose. कैसा उसका, क्योंकि 4 किराल कार्बन आ रहे हैं इसमें, बीच के जो 4 कार्बन है वो सब किराल है, तो कैसा उसका सजेस्टिव स्ट्रक्चर होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. क्लियर? ओके बेटा, टिल देन बाय बाय.